हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जितने जन आप फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं, परमेश्वर के जीवित हजूरी में हैं, एक बार जोर से तालियों के साथ तो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में। कृपया आप बैठ जाएं अपने अपने स्थानों के ऊपर। ये समय टेस्टमनीज को, गवाहियों को सुनने का है कि परमेश्वर ने कैसे लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम किए। अचंभी रीति के साथ लोगों को परमेश्वर ने हील किया, डिलीवर किया, चंगाई, बरकतें दी, परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया। तो मैं चाहता हूँ एक बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी, लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी आप उसको सुने। वो हमारे बीच में अपनी गवाही देने आए हैं। आप बताएं भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोडी है जी। ओके, रहने वाले कहाँ के आप? जिला कपूरथला, पिंड हैगा मेरा भलाना, रेल कोच फैक्ट्री। ओके, 12 साल से आपका जीवन पाप के अंदर था, नशों के अंदर था। आप बताएं अपनी लाइफ के बारे में, क्या सी आपकी लाइफ? ब्रदर ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਓਕੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ओके, ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਪ ਜਿੱਦਾਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ। ओके, ये तो आपका काम हो गया एक तरह से। हाँ जी। अब अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आपने बताना है कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी थी, नशे थे, जो भी आपके लाइफ में चीजें थी, उसके बारे में बताएं आप। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਤਲਬ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀ ਮੇਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਆਮ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆ, ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ओके, ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। कब नशा शुरू किया आपने, कितने साल पहले? ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡੀਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ओके, ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ 500 ਲੈਣਾ, 2000 ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸਭ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। धोखेधड़ी से लोगों से पैसे ले लेते आप? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ओके, आप जब नशा करना आपने शुरू किया था, ਹਾਂਜੀ आपके परिवार को मालूम था नशे के बारे में कि या नहीं? ਪਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ। तो कभी रोका टोका नहीं उन्होंने? ਹਾਂਜੀ, कभी रोका नहीं नशे से? ਨਹੀਂ ਰੋਕਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਮਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਾ ਵਾਂ, ਉੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ। तो इन नशों का, पाप का, इस बुरी जिंदगी का आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ा? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਵਾ, ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। बोले इतना कुछ होने के बावजूद भी लाइफ टोटली पाप के अंदर ही थी आप? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਓੜ ਪੋੜ ਬੜੇ ਕੀਤੇ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ, ਕੋਈ ਬਾਬਿਆਂ ਬੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਲਾਗੇ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਸੈਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ, कपूरथला में? ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ओके, ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਘਰ ਵਾ ਮੇਰਾ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ, ਵੀ ਇਹ ਖਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ अच्छा, आप उस समय विश्वास नहीं करते थे? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ ਨਾ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ। आपको क्या लगता था चर्च के बारे में? ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖਣੇ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਪੰਪਲੇਟ ਲੱਗਣੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਦੇਖੇ ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਰੇ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। और आपको लगता था कि ये जो गवाहियां ये सब खरीदी हुई हैं, सब पाखंड है? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਗਏ घूमे ਫਿਰੇ ਬੜਾ। मतलब कि इनको हुआ क्या था उस समय? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੇਨ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। अच्छा। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠਾਲ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਠਾਲ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਗੇੜੀ ਦੇ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਓ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਚਲੋ ਉਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਥਾਨ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਦਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। तो आप अपने उस टाइम को बताएं कि जब आपकी लाइफ चेंज हुई, परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी को चेंज किया? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਉਦਾਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਬੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਓੜ ਪੋੜ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੜਿਆਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਕਿਤੇੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲ ਵੀ ਲੜ ਵੀ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਭੈਣ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ 2-4, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ओके, आप पहली बार यहाँ खामरा चर्च मेन हेड चर्च में आए या कपूरथला ब्रांच में? नहीं, ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੁਣਾ ਚਰਚ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟਨ ਆ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੁਣ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੋ, ਚੱਲ ਉਹ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ 1-2 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, 10-5 ਮਿੰਟ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਵਾ ਘਰੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਸੌਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੌਲੀ 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 ਸੌਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ। अच्छा। ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਕੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਲੋਕੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਤੜਫ ਸੀ ਜੂਵੇ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਤੜਫ ਸੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਵਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਲੈ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੂਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੀਏ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪਾਪਾ ਜੀ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਫੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ, ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ शुरू किया। मैं पूछा तो फोन पे ओके अगर टेस्टमनी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी ऐसे तो आप बताएं, जब आपने यहाँ पर आना शुरू कर दिया 30 जून 2024 की मीटिंग को आपने अटेंड किया था? हाँ जी, जिसमें परमेश्वर के दास ने स्पेशली डिलीवरेंस के लिए प्रेयर करी थी। हाँ जी। ओके, उस प्रेयर को मैं चाहता हूँ स्क्रीन पे देखें एक बार। होली गोस्ट नशे की आत्मा की ओर प्रार्थना करते हैं। जो नशा करते हैं अपने सिर पे हाथ रखें। यीशु के नाम में नशे की आत्मा, मैं देख रहा हूं वॉमिटिंग से आप आजाद हो रहे हैं। आप नशा करते लेकिन खुदावंद का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ। ओके, जब आपने विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया उसके बाद क्या होगा, क्या बदलाव आया आपके जीवन में? उदन ही ब्रदर जी ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸ਼ਾਮ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। अब कोई नशा नहीं है, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। वाइफ जो बीमारी थी वो भी खत्म हो चुकी सारा है, कुछ घर में शांति है, शांति। अब नया जीवन पाके मसीह में कैसा लग रहा है? अब आपका जीवन कैसा है? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੂੜੀ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੀਦੀ ਆ। तारीफ करें इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए। अपने हाथों को हिलाते हुए सब चर्च ब्रांचेस हालेलुया 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 महिमा देते जाएं। जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा, देखो और चखो यहोवा कितना भला परमेश्वर है। जब तक हमने टेस्ट नहीं किया परमेश्वर को, देखा नहीं, चखा नहीं, तब तक हम ये बता नहीं सकते कि परमेश्वर कैसा है। इस भाई की लाइफ चेंजिंग ये टेस्टमनी है। जब मसीह में नहीं थे तो विरोध करते थे या मन में ये सोचते थे पता नहीं चर्च जाऊंगा क्या होगा। जब यहां पे आए तो पता चला कि यीशु मसीह धर्म जात चेंज नहीं करता, वो आपका जीवन चेंज करने के लिए आया। यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते ऊंची आवाज में हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। सबसे पहले जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें इन अद्भुत गवाहियों के लिए कि कैसे परमेश्वर लोगों के जीवन को चेंज करता है। हालेलुया। तो ऐसे ही और एक टेस्टमनी हमारे पास है जिनके जीवन में परमेश्वर ने बड़ा काम किया। सिस्टर कोमल की ये गवाही है, टोरंटो ब्रांच के ये रहने वाले हैं और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं
कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत काम किया है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸਿਟੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੋਮਲ ਸੋਨੀਆ, ਮੈਂ ਏਐਨਐਮ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਵੇਅਰ ਪੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਡੀਕਵੀਰਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਫਲੂਇਡ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਸਟੀਰੋਇਡ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਵਾਏ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਵਰਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਈ ਫੇਥ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੀਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किए, ने हील किया। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे, जुड़े हुए थे, फिर 26 अक्टूबर 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ ने इनके जीवन में काम किया, उस रोग से, उस बीमारी से इन्हें आजाद किया। अब पूरी तरह से आजाद है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी करना, उसके लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ उसके लिए पॉसिबल है। हालेलुया। आज आपकी बीमारियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों नहीं है, आपके रोग कितने भी बड़े क्यों नहीं है, मायने नहीं करता कि वो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कितने सालों से, मायने करता कि आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर कितना बड़ा है। आप जैसे ही आज फेथ के साथ परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, जैसे ही आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। अगले आप होंगे जो गवाही के साथ यहाँ पे खड़े होंगे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। इस बहन का नाम वर्षा सिंह है और बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी इनकी। 6 साल पहले पागलपन के अटैक इनको होने शुरू हुए और जिसकी वजह से इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो सुनते पहले इन्हीं के मुँह से कि कैसी इनकी लाइफ थी, क्या क्या इनकी उस समय कैसी हालत थी और कैसे परमेश्वर ने इनको उस पागलपन से आज़ाद करके एक नया जीवन दिया। जय मसीह। मेरा नाम वर्षा सिंह है। मुझे 6 साल पहले किसी ने पानी में कुछ मिलाकर खिला दिया था, जिसके चलते मुझे पागलपन के अटैक होने लगे और मैं पागलों जैसा हरकत करने लगी। घर पे सबको मारती पीटती थी, खुद को भी चोट पहुंचाती थी, सारी चीजों को तोड़फाड़ कर देती थी और मेरे अंदर ऐसा हो चुका था कि मैं खाना वाना भी छोड़ चुकी थी और बंद कमरे में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। किसी से बात नहीं होती थी मेरी और खाना वाना छोड़ने के कारण मेरे बॉडी में वीकनेस आ गई थी और मुझे बार बार हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता था, जिसके चलते मुझे ऑक्सीजन भी लग जाती थी। और मेरे पेरेंट्स मेरी कंडीशन को देखकर बहुत परेशान होते थे। वो दिन भर रोते रहते थे। वो सोचते थे कि मैं कभी चंगाई ले पाऊंगी कि नहीं। 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की है। 1 बार मैंने अपने गले पे फांसी ली है, 2 बार मैंने अपने हाथों को काटा है, जिसके चलते मेरे पेरेंट्स मुझे घर पे बांध के रखते थे। वो मुझे बाहर भी नहीं छोड़ते थे। मेरी एजुकेशन लाइफ पूरी स्पॉइल हो चुकी थी, पूरी खराब हो चुकी थी। मेरी कंडीशन दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी कंडीशन को देखकर मेरी मासी, जो कि अंकुर नरूला मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई थी, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को खड़गपुर ब्रांच के बारे में बताया। मेरे पेरेंट्स मुझे ब्रांच रेगुलर लेकर आए और मैं ब्रांच आई। मेरे जीवन में काफी परिवर्तन हुए, मैं रेगुलर हुई, मेरे लाइफ में चेंजेस आई। मैंने अपोस्टल अंकुर नरूला जी की प्रार्थना को, सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और मैं उसी पल पूरे तरीके से हील हो चुकी थी और मेरे अंदर से मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज छोड़कर जा रहा है। मुझे बिल्कुल ठंडा सा लगा और आज मैं पूरे 3 महीने से हील हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। इस सामर्थ्य गवाही के लिए मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और हमारे दास दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। तारीफ करें कलीसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें इस टेस्टमनी के लिए। 24 अगस्त 2025 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया, उसमें जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को भी देखते हैं हम। जीसस की हीलिंग, उसकी डिलीवरेंस आपके शरीरों को राइट नाउ छुए और सारी बीमारियां आपके शरीर को छोड़कर चले जाएं राइट नाउ। और जब इन्होंने प्रेयर को बाय फेथ
अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर के सामर्थ्य ने छुआ और वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के गया। उस दिन के बाद से आज लगभग 3 महीने के करीब हो चुका है। हर तरह के पागलपन के अटैक से ये बहन पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके जीवित नाम को महिमा दे। आपने अगर ध्यान से सुना कि परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की कि जो पागलपन की दुष्ट आत्माएं हैं, जो पागलपन के अटैक हैं, वो आपकी जिंदगी को, आपकी बॉडी को छोड़े और वो निकल जाए। जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूं। उसने कहा जो तू बोलेगा वो पूरा होगा। जब परमेश्वर के दास ने ये डिक्लेयर किया, ये घोषणा की, वो स्पिरिट इनको छोड़ के गई। आज हर तरह के पागलपन से ये बहन पूरी रीति के साथ आजाद है और परमेश्वर ने एक नया जीवन इस बहन को दिया है। तो अपने हाथों को हिलाएं चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक और टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। इस बहन का नाम नब्बिता है और बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है। खुदा ने अद्भुत काम इनकी जिंदगी में किया। आप जानते हैं कि जब आप प्रेयर को ग्रहण करते हैं तो आप छुटकारा पाते हैं। तो आज भी जो लोग प्रार्थनाओं को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको टच करता है। जिस तरह परमेश्वर ने उस बहन को आजाद किया, 6 साल पुराने पागलपन से खुदा ने आजाद किया और उनको एक नया जीवन परमेश्वर ने दिया है। तो परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुएगा। आप जहां कहीं भी मौजूद हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े और अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। इस बहन की टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। 10 साल से इनके पीरियड्स इरेगुलर थे, हैवी ब्लीडिंग रहती थी और भी साथ में इनको बहुत सारी बीमारियां हो चुकी थी। तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं इनकी क्या टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने क्या काम इनकी जिंदगी में किया। आपको जय मसीह की। मेरा नाम नौविता दास है। आज से 10 साल पहले जब मेरे पीरियड्स आना स्टार्ट हुए, 2-3 महीने के गैप में मेरे पीरियड्स आया करते थे और जब आते थे तो 2-2 महीना पीरियड्स मेरा चलता ही रहता था। बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग रहती थी और एक दिन में मुझे 12 से 13 बार कपड़े बदलने पड़ते थे। मैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी और मेरा शरीर सूखता ही जा रहा था। मेरा वेट भी 31 kg रह गया था। मैं खुद से खड़ी तक नहीं हो पाती थी। मुझे टॉयलेट वॉशरूम में मेरी फैमिली के सहारे मुझे जाना पड़ता था। डॉक्टर को दिखा तो डॉक्टर ने थायराइड का रोग बताया। मैं लगातार मेडिसिन ले रही थी, 5 डॉक्टर चेंज कर चुकी थी, पर मुझे कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें मुझे सुनाई देते थे। मैं खुली आंखों से काली परछाइयों को देख पाती थी जो मेरे हर समय मेरे साथ रहती थी। मैं अपनी स्टडी में भी फोकस नहीं कर पाती थी। मैं स्कूल तक कंटिन्यू नहीं जा पाती थी। मैं किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही थी। मैं कोई भी काम शुरू करती तो मुझे उसमें फेलियर ही मिलता था। इतना ज़्यादा बीमार रहने के कारण, 10 साल लगातार दवाइयाँ खाने के कारण जब मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था, मैं तब टूट चुकी थी और यही सोचती रहती थी कि पता नहीं मेरे करियर का क्या होगा। फिर मेरी ऐसी हालत को देखकर किसी ने मुझे एनए मिनिस्ट्री के बारे में बताया और वहाँ से मैं मेनपे ब्रांच में लगातार आती रही, गवाहियों को सुनती थी, प्रेयर्स को रिसीव करती थी और परमेश्वर ने मुझे सारे रोगों से आज़ाद किया। मुझे टीचर की जॉब के संग ब्लेस किया। अब मेरा वेट भी बढ़ चुका। मैं अपना काम खुद ही सारा करती हूँ। परमेश्वर मेरी सारी जिंदगी को खत्म किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें इक्लेसिया इस बड़ी गवाही के लिए कि जैसे इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर ने हर तरह की बीमारी को खत्म किया, फेलियर स्पिरिट छोड़ के गई और परमेश्वर ने एक नया जीवन परमेश्वर ने इस बहन को दिया, एक नई जॉब के साथ ब्लेस किया। इनकी लाइफ को परमेश्वर ने रिस्टोर किया, क्योंकि वचन कहता है कि अगर हमारा भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर है तो हमारी लाइफ में शैतान का हाथ कभी टिक नहीं सकता है, कि जो शैतान ने योजनाएं बनाई हैं वो कभी सफल नहीं हो सकती है। इसलिए आज जब आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करेंगे, वर्ड को सुनोगे, तो आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा और आप भी इसी तरह से अपनी बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस बोले अपने हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएंगे। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर बलविंदर इनका नाम है और ये गवाही इनके पोते शुभदीप की है और ये बहुत ही अद्भुत गवाही है। इनका एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, तो आज ये भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया, इन्हें हील किया है। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ। 4 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ, ਮੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੋਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਨਾਲਿਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਹੇ ਨੇ ਖੜਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। 2025 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਿਲकुल ठीक है। 3 महीने हो चले जो सारे जय मसीह। तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इनकी गवाही को, इनके पोते की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, उसे हील किया। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे, जुड़े हुए थे, फिर 24 अगस्त 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ इन्होंने अपने पोते के लिए रिसीव किया था। और जैसे मैं प्रार्थना करता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर का हर एक रोग, तुम्हारी हड्डियों का रोग, तुम्हारी मांसपेशियों का रोग, तुम्हारे ब्लड का रोग, किसी भी तरह की डेफिशिएंसी, किसी भी तरह का ज्यादा किसी चीज का होना, वो सारी चीजें नॉर्मल हो जाएं, हड्डियां ठीक हो जाएं, दर्दें छोड़ के चली जाएं, एक्सीडेंट के रोगी आजाद हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जैसे ही सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने इनके पोते को छुआ, उस दिन से पूरी तरह से हील है, पूरी तरह परमेश्वर ने आजाद किया और अब इनका पोता पूरी तरह से हील हो चुका है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। तो वही सेम वचन इनके पोते के जीवन में कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ और परमेश्वर ने उसे हील किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इन गवाहियों के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर पूजा की हमारे पास आई है। ये जलंधर के रहने वाले हैं और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਜਾ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। 31 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ 1.5 ਮੰਥ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਵੀਟ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ। और जिस दिन इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया था 31 दिसंबर 2024 को, तो वो प्रार्थना भी हमारे पास मौजूद है। हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। आपका न्यू ईयर जो आप परमेश्वर के भवन में हो, खुदा के भवन में आप इस नए साल में हो, ये ऑर्डिनरी बात नहीं है। परमेश्वर आपके विश्वास को जो आपने प्रभु के लिए दिखाया है उसका ऑनर करेगा। वो आपके वंश को बढ़ाएगा, सारे श्रापों को खत्म करेगा, वो आपके रास्तों को साफ करेगा और आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आमीन। ऊंचा खड़कने वाला यीशु मसीह के नाम में। और जैसे पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने उन वर्ड्स को रिसीव किया, उसके ठीक ही कुछ समय बाद ये बहन प्रेग्नेंट हुए। परमेश्वर ने 9 मंथ इन्हें संभाल के रखा। फिर 30 जुलाई 2025 को परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया, यानी बेटी के 7 साल बाद परमेश्वर ने एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं।
क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य अपने मन में योजनाएं करता है, लेकिन बाइबल कहती है उसे पूरा करने वाला यहोवा है। सेम ही इस बहन की हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस करे, और परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। तो ये अगली गवाही सिस्टर अर्चना की सुनेंगे। ये बहन बेंगलोर से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, कर्नाटका से। तिनकी गवाही की मार्च 2021 में अचानक इस बहन को लहू बहने का रोग शुरू हुआ। वो रोग इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि दिन में सिस्टर 10 से 12 बार कपड़े चेंज करते थे, 5-6 डॉक्टर भी चेंज किए, लेकिन इस रोग के कारण डिप्रेशन में जा चुके थे, इतनी शर्मिंदगी थी। तो आज ये सिस्टर अर्चना कर्नाटका से हमारे साथ तो लाइव जुड़े हैं। तो हम पहले सुनते कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सबको प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अर्चना है। मैं बेंगलुरु ब्रांच से अपनी जीवन की बेस्ट गवाही देने जा रही हूँ। 2020 में मेरे को अचानक ब्लीडिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। 52 डेज लगातार ब्लीडिंग हो रहा था। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने दवाई दिया था 3 महीने को, खाने के बाद अच्छा था। उसके बाद फिर से प्रॉब्लम वही स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैं दूसरे डॉक्टर के पास चेंज किया। उसके बाद ऐसा ही होकर 5-6 डॉक्टर मैंने चेंज किया। मेरा रिपोर्ट में पूरा नॉर्मल आ रहा था। डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारा घर में भी बहुत ज़्यादा हस्बैंड वाइफ के बीच में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लग गया, और मेरा मन में तो सुसाइड करने का भी प्रॉब्लम आ गया था। मेरे को जॉब में भी छुट्टी दे दिया कि 2 जॉब करता था, और दोनों जॉब में भी मैं जा नहीं पा रहा, तो मेरे को 2 जॉब में भी निकाल दिया है। बाद में मैं घर में बैठ के ऐसा ही परेशान हो गया था। बाद में मेरा हस्बैंड ने यूट्यूब चला रहा था, उसके बाद परमेश्वर की दास का वीडियो आया, वो देखा। देखने के बाद ब्रांच हम लोग ने सर्च किया, बेंगलोर ब्रांच के बाद मार्च 2024 से हम लोग ब्रांच में आया, लगातार चर्च आते रहे। और अगस्त 17 को 2025 को परमेश्वर की दास ने घोषणा किया है यूट्रस का प्रॉब्लम चंगे हो जाए, यूट्रस का ब्लीडिंग प्रॉब्लम चंगे हो जाए। वो प्रेयर वर्ड को मैंने रिसीव किया अपने लिए। उसके बाद मेरे को गर्माहट फील हुआ। उसके बाद मैं गिर गया। उसके बाद मैं थोड़ा हील हो गया। अभी 4 मंथ हो गया, मैं पूरी तरह से हील हूँ, और मेरा हस्बैंड और मैं बहुत अच्छे से रहता। प्रभु ने मुझे मेरी फैमिली में रानी बना के रखा है, और प्रभु का दास का और दासी का दिल से धन्यवाद करता है। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। और मैम तारीफ 17 अगस्त 2025 को जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल हीलिंग के लिए प्रार्थना की, उसी प्रार्थना ने इस बहन को पूरी तरह से हील किया। तो हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। उस ऑयल को निकालो अपने हाथों में। आज पवित्र आत्मा उस ऑयल को जो बीमार लगा रहे हैं, जो तकलीफ से गुजर रहे हैं वो लगा रहे हैं, जो डिस्कंफर्ट से गुजर रहे हैं, बीमारियों से गुजर रहे हैं, कर्जों से गुजर रहे हैं, खुदाबंद ये वही ऑयल आज जब इनकी जिंदगी में जाए, एक बड़े चमत्कार को इनकी जिंदगी में पैदा करे। तो कलीसिया आपने देखा कि जैसे परमेश्वर के दास ने घोषणा की कि अगर जैसे आप इस अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करेंगे, जिस शर्मिंदगी से आप गुजर रहे हैं आज उसका अंत होगा। तो जैसे इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस घोषणा को रिसीव किया, अपने शरीर के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, तो बहन तारी एकदम से इस बहन को गर्माहट फील हुई। और जो कितने सालों से, कितने समय से जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, लहू बहने का रोग, वो शर्मिंदगी थी, उसी दिन इस बहन को वो शर्मिंदगी छोड़ के की। अब 4 महीने हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है। कोई लहू बहने का रोग, कोई शर्मिंदगी, कोई डिप्रेशन नहीं। एक बेस्ट लाइफ के साथ यीशु मसीह ने इस बहन को खड़ा किया। तो तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। अब जानते हैं कि बाइबल में भी एक ऐसा वाक्य था जो 12 साल से जिस बहन को लहू बहने का रोग था। तो बाइबल कहती है जैसे उस बहन ने पूरे फेथ के साथ यीशु मसीह को टच किया, बाइबल कहती है वो 12 साल पुराना रोग उसी दिन खत्म हुआ। वो सेम गवाही के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया। तो आज भी हमारा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, आज भी वो बड़े कामों को करने की ताकत रखता है। तो तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर रेनू की हमारे पास आई है। ये यमुना नगर के रहने वाले हैं, और लगातार ये यमुना नगर चर्च जो ब्रांच है अंकुर मिनिस्ट्री की, उसके साथ जुड़े हुए हैं, और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम रेनू है। मैं हरियाणा यमुनानगर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि 17 साल पहले मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, और सपने में गंदा पानी दिखाई देता था।
और दबाव पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं रोती थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे मम्मी डैडी ने मेरी मैरिज कर दी और मैरिज के बाद मेरे ऊपर वही अटैक और बढ़ने लगे। जैसे अटैक बढ़ने लगे मुझे घर में खून के छींटे दिखाई देते थे, की वजह से मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। जैसे ही डेथ हो गई उसके बाद मेरी मम्मी डैडी ने फिर मेरी सेकंड मैरिज कर दी। सेकंड मैरिज करने के बाद फिर मेरे ऊपर वही अटैक फिर होने लगे। जैसे ही अटैक बढ़ने लगे मेरा पति मेरे को छोड़ के चला गया और उसके बाद किसी ने मेरे को खामरा चर्च का पता दिया। जैसे उन्होंने खामरा चर्च का पता दिया और मैं हर संडे चर्च आने लगी और मेरी खुदा की दासी से मेरी ले हैंड हुई। जैसे ही मेरी ले हैंड हुई और मुझे हल्का फील हुआ और तब से मेरी मैरिड लाइफ ब्लेस है और मैं बिल्कुल ब्लेस हूँ। मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ ठीक ठाक रहता है और हम बिल्कुल ब्लेस है। सारा जय मसीह की, हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 15 मई 2025 को परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। तो आइए सबसे पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। तेरी याद से मुझको बदल, तेरी याद से पवित्र कर, तेरी याद। और जैसे परमेश्वर की दासी का सामर्थ्य हाथ इस बहन के ऊपर आया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इन्हें छुआ और वो जादू टोना इस बहन को छोड़ के गया और आज ये उस जादू टोने से, उस डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखे, उसके पाक कलाम में लिखे कि याकूब के घराने पे कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। और ये वचन इस बहन की लाइफ में पूरा हुआ। जैसे परमेश्वर की दासी का हाथ इस बहन के ऊपर आया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इन्हें छुआ और वो उसी समय दुष्ट आत्मा, जादू टोना इन्हें छोड़ के गया और आज पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करे, लोगों को डिलीवर करे। जोर से तालियों के साथ। तो ये अगली गवाही सिस्टर हरप्रीत की सुनेंगे। ये गवाही इनकी बेटी अनाया की है और ये एडमिंटन चर्च ब्रांच से आज अपनी गवाही देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनकी बेटी की गवाही के 2 महीने पहले इनकी बेटी को स्किन का रोग शुरू हुआ और वो रोग बढ़ता जा रहा था और वो काफ़ी परेशान थी इनकी बेटी इस रोग के कारण। तो आज ये सिस्टर हमारे साथ अपनी बेटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। प्रभु दे नाम की तारीफ होवे। मेरा नाम हरप्रीत है और मेरी बेटी का नाम अनाया है। ये जी गवाही देन जा रही हाँ, मैं एडमिंटन ब्रांच तो अपनी बेटी अनाया दी देन जा रही हाँ। मेरी गवाही ये है कि अज तो 2 महीने पहला मेरी बेटी दे बॉडी ते ड्राइनेस होनी शुरू हो गई सी। मैं इग्नोर कर दिता कि माइट भी ये वैदर चेंज करके होनी आ, पर ये जी ड्राइनेस आ ये हौली हौली ये वधदी गई और सिर तो लैके पूरे पैरां दे तले तक ये ड्राइनेस जी शुरू हो गई और इन्हें सारा दिन इन्हें ईचिंग करती रहना, अपनी बॉडी ते खुजलांदी रहना और जी ये ड्राइनेस आ एक स्किन डिजीज़ दे विच बदल गई और ये डैड स्किन जी उतरनी शुरू हो गई और इन्नी ज़्यादा ये ईचिंग हुंदी सी कि सारा टाइम ये खुजलांदी हुंदी सी। ये जिहड़े कपड़े भी सानू टब रूम दे विच जाके चेंज करने हुंदे सीगे क्योंकि अदरवाइज ये डैड स्किन जी हर एक पासे बिखरदी सीगी। इनू आपां सैपरेट लम्मी पाना शुरू कर दिता अपनी मैं बेटी नू। उस तो बाद जिहड़ी ये स्किन डिजीज़ आ हौली हौली ये पेनफुल दे विच बदल गई। जदों इनू पेन शुरू हो गई ये स्किन फटनी शुरू हो गई, पूरी बॉडी ते रेडनेस इहदी हो गई, ये टच भी नहीं करन दिंदी सी, इहदा बाथ लेना भी बहुत ज़्यादा औखा हो गया सी। मैनू प्रभु ते विश्वास सी, पर जदों ये जिहड़ी स्किन डिजीज़ आ एक इहदे पेन दे विच बदल गई, मेरे अंदर एंगजाइटी शुरू हो गई। मैं डॉक्टर नाल कंसल्ट किया, उन्होंने इनू कुछ मेडिसिन्स दित्तियां तो सानू स्किन स्पैशलिस्ट को रैफर कर दिता और उहदी अपॉइंटमेंट जिहड़ी आ सानू बहुत ज़्यादा लेट मिलती सीगी और मेरे अंदर एक स्ट्रैस शुरू हो गया कि जे इस बच्ची की स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा वध गई तो मैं इस जगह के उत्ते किद्दां उहदा ट्रीटमेंट करवाऊँगी। और उस तो बाद मैं प्रभु ते विश्वास किया, मैं ये अनॉइंटिंग ऑयल जिहड़ा वो लगाना शुरू किया और प्रेयर टावर के उत्ते ये लगातार मैं प्रेयर करवाती रही अपनी बेटी दे लई। और जो मैं ये मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाती सी उदों इनू बहुत दर्द हुंदा सी, मेरे अगे अगे भजदी सी कि मैनू पेन हो रहा, मैनू टच ना करो, पर जो मैं ये अनॉइंटिंग ऑयल लगाती सी उदों इनू रिलीफ मिलता सीगा। फिर मेरा जिहड़ा विश्वास आ खुदा दे विच इसी तरह वधदा रहा, बनया रहा। मैं घोषणावां करती रही अपनी बेटी दे लई
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਇਹਦੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਇਹਦੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਈਚਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। प्रभु के नाम की तारीफ होवे। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। तो आपने देखा कि वो स्किन का रोग बढ़ता जा रहा था, लगातार स्किन स्पेशलिस्ट के बाद डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर 26 अक्टूबर 2025 को जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, घोषणा की हीलिंग के लिए, तो आपने सुना कि ये सिस्टर बता रहे कि लगातार अपनी बेटी के शरीर के ऊपर उस स्किन के रोग के ऊपर अनॉइंटिंग अप्लाई करते रहे। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद, अनॉइंटिंग अप्लाई करने के बाद वो स्किन का रोग पूरी तरह से जड़ से खत्म हो चुका है। आप देख सकते बिफोर और आफ्टर की फोटोज को कि कैसे यीशु मसीह ने उस बच्चे को भयानक रोग से हील किया और आपके सामने बच्ची पूरी तरह ठीक है, कोई बीमारी नहीं। तारीफ करे कलीसिया इस गवाही के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। तो आप जानते कि बाइबल में भी लिखा है कि अगर कोई बीमार है तो यीशु मसीह ने कहा उसे पास्टर के पास, दासों के पास लेके जाया जाए ताकि वो पास्टर ऑयल के साथ उसके ऊपर प्रार्थना करे और वो रोगी हील हो सके। तो इसी तरह से हम ये मिनिस्ट्री, ये सेवकाई, हम संपूर्ण बाइबल को पूरा करते हैं, वो विजन को, उस दर्शन को, वो सारी आज्ञाओं को परमेश्वर के दास मान रहे हैं। और जैसे आप जान देंगे, जैसे अनॉइंटिंग अप्लाई होता है तो लाखों लोग अपने डिलीवरेंस को ले चुके हैं। तो अगर आपका फेथ यीशु मसीह पर होगा, आप इसी तरह बड़ी गवाही को लेकर वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। तो आप जानते कि जब भी परमेश्वर की दासी हमेशा हमें गाइड करते हैं कि हमने लगातार बोने के साथ, फाइनेंस के साथ, परमेश्वर के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ वफादार रहना और जो भी उस टीचिंग को सुनकर परमेश्वर के भवन में अपने फाइनेंस को बोता है और वो फिर उन्हीं चीज़ों को काटता है अपने जीवन में। और आज कुछ टेस्टमनीज हमारे पास आई हैं, हम एक साथ सभी टेस्टमनीज को सुनेंगे। सिस्टर सोनाली की गवाही हमारे पास आई कि परमेश्वर ने इन्हें गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। ब्रदर लविश की गवाही हमारे पास आई है कि परमेश्वर ने इन्हें वीज़ा के साथ ब्लेस किया। ब्रदर विक्की शर्मा की गवाही हमारे पास आई कि परमेश्वर ने एक सीनियर मैनेजर पोजीशन के साथ ब्लेस किया परमेश्वर ने। सिस्टर खुशी की गवाही हमारे पास आई कि परमेश्वर ने फाइनेंशियली ब्लेस किया और एक कन्वेंस के साथ ब्लेस किया। और इसी तरह से सिस्टर मुस्कान की गवाही हमारे पास आई कि परमेश्वर ने कनाडा के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। इस तरह से सिस्टर अनी की गवाही हमारे पास आई कि परमेश्वर ने इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ब्लेस किया। ब्रदर अमन को परमेश्वर ने जीवन में काफ़ी बड़ा काम किया कि परमेश्वर ने इन्हें, इनकी जो सैलरी रुकी थी वो इंक्रीज हुई और परमेश्वर ने एक बड़ी जॉब के साथ इन्हें ब्लेस किया। ब्रदर अमरजीत की गवाही हमारे पास है कि जो इनकी सैलरी रुकी थी वो इन्हें मिली और परमेश्वर ने एक बेस्ट जॉब के साथ इन्हें ब्लेस किया। तो सब जन इन जो सारी टेस्टमनीज के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करा है, लोगों को डिलीवर करा है। जोर से तालियों के साथ इन सभी टेस्टमनीज के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। रूबरू ऐसा तू मिला, रूबरू ऐसा तू मिला, रूबरू पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे